آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب نے $2 ارب اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دی ہیں۔ ڈالرز ملتے ہی اسحاق ڈار نے 2 سال میں مہنگائی 7% تک لانے کا دعویٰ کر دیا۔ ساتھ ہی بولے کہ پاکستان اسی سال G20 کلب میں شامل ہو جائے گا۔ کوئی اور پیسے دے گا تو ہم بھی دیں گے۔ IMF کی شرط پر عمل کی لائن مزید گرین۔ مشکل وقت میں ایک بار پھر برادر اسلامی ملک سعودی عرب میدان میں آ گیا۔ $2 ارب اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دیے۔ ہمارے برادر ملک سعودی عربیہ نے $2 بلین کا ڈپازٹ پاکستان کو دیں گے۔ الحمدللہ انہوں نے وہ ڈپازٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ پلیس کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں وہ کریڈٹ آ چکا ہے۔ اسحاق ڈار نے ویڈیو پیغام جاری کرنے کے بعد یونیورسٹی میں خطاب کرنے پہنچ گئے، جہاں بلند و بالا دعوے کیے۔ وزیر خزانہ نے کہا 2025 میں مہنگائی کی شرح 7% تک آ جائے گی۔ پاکستان 2023 میں ہی G20 کلب میں شامل ہو جائے گا۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا IMF سے پاکستان کو $1 ارب 19 کروڑ ملیں گے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا پہلا مقصد پاکستان کو 24ویں معاشی قوت بنانا ہے۔ 2022 میں معیشت تباہ ہو رہی تھی، اسی لیے حکومت حاصل کی تھی۔ وزارت خزانہ اور IMF کے درمیان ایکسٹرنل فنانسنگ کا معاملہ طے پا گیا۔ عالمی ادارے نے وزارت خزانہ کے بھیجے گئے $8.2 ارب کے فائنینسنگ گیپ منصوبے کو اوکے کر دیا ہے۔ پلان کے تحت عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک کے علاوہ چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے فائنینسنگ حاصل کی جائے گی۔ IMF کا ایگزیکٹو بورڈ کل اہم اجلاس میں پاکستان کے لیے $1.1 ارب کی قسط جاری کرنے کی منظوری دے گا۔ بیرونی فائنینسنگ پلان منظور، قرض کے اجراء میں ہر رکاوٹ ہوئی دور۔ IMF نے $8.2 ارب کا فائنینسنگ منصوبہ اوکے کر دیا۔ پلان کے تحت دوست ممالک اور مالیاتی ادارے رقم فراہم کریں گے۔ وزارت خزانہ کے پلان کے مطابق سعودی عرب سے $2 ارب مل گئے۔ UAE سے $1 ارب کی فائنینسنگ حاصل کی جائے گی۔ ایشیائی بینک اور عالمی بینک 50 کروڑ فراہم کریں گے۔ رواں مالی سال کے دوران چین سے $3.5 ارب کی فائنینسنگ کا انتظام کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے پلان کے مطابق IMF سے $3 ارب قرض معاہدے کے تحت حاصل کیے جائیں گے۔ IMF کا ایگزیکٹو بورڈ کل سر جوڑے گا۔ اجلاس میں پاکستان کے لیے $1.1 ارب کی قسط جاری کرنے کی منظوری دی جائے گی۔ ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے قبل پاکستان کا ایکسٹرنل فائنینسنگ پلان منظور ہونا لازمی تھا۔ IMF پروگرام خوشی سے نہیں مجبوراً قبول کیا۔ رونے دھونے سے کبھی ملک خوشحال نہیں ہوئے، ہمیں ماضی میں جا کر سبق سیکھنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فاٹا یونیورسٹی پشاور میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا گزرے سال بہت مشکل تھے۔ اطلاعات کی چیلنجز تھے، ہماری معاش جو کہ IMF کی وجہ سے ہمیں دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑا۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ IMF کو ہم نے یہ پروگرام خوشی سے قبول نہیں کیا۔ ہم نے سب نے مل کر اگر پاکستان کی خدمت کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ وہ خدا کے فضل و کرم سے زراعت پاکستان کی معیشت کو بدل کے رکھ دے گی، اور اگر ہم نے قرضوں سے جان چھڑانی ہے، اگر ہم نے بیکاری پن کا خاتمہ کرنا ہے، تو پھر ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ آپ کے صوبے میں رب تعالیٰ نے بڑی معدنیات عطا کی ہیں، اگر ہمیں کوئی کمی ہے تو صرف ایک چیز کی کمی ہے، that is will to do۔ معیشت کا پہیہ گھوم گیا، روپیہ اوپر ڈالر نیچے۔ انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں $1.30 کی کمی۔ صدر فاریکس ایکسچینج ملک بوستان ڈالر کی قدر مزید نیچے آنے کی پیش گوئی کر گئے۔ کہا حکومت نے اس سلسلے میں اہم اقدامات کیے ہیں۔ دیکھو جانا پہلا اس کا لیول وہی ہے 270 اور 270 کے بعد 250 ہے، اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے، سب نے پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے، اور بڑی انہوں نے کہا روپیہ بہت انڈر ویلیو ہے، اس کی ریئل ویلیو $245 ہے، اور فی الحال 245 ہے، اس کے بعد 200 ہے۔ تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی روپے جب بڑھتے ہیں تو بڑے، کوئی نہیں کہتے کہ کیوں بڑھے، اور جب گھٹتا ہے تو سارے تبصرے کرتے ہیں کیوں گھٹ رہا ہے، یہ تو ٹیمپریری ہے۔ مطلب ہمیں اپنے بھی کانفیڈنس نہیں، نہ اپنے روپے پہ، نہ اپنے آپ پہ، نہ اپنے ملک پہ۔ یہ بہت ہی یعنی کہ افسوسناک بات ہے۔ اور حکومت نے عالمی بینک کے معاملے پر اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ 1 اگست سے پراپرٹی ویلیویشن ریٹ بڑھائے جائیں گے۔ FBI نے پراپرٹی ویلیویشن میں مزید 9 شہر شامل کرنا شروع کر دیا۔ فہرست میں موجود شہروں کی تعداد 51 کی جائے گی۔ ملکی تعمیر و ترقی اولین ترجیح، مشن معیشت میں بول حکومت کے ہم قدم۔
पाक IMF डील के मुस्बत असरात, माशी इशारिये क्या कहते हैं, खुसूसी ट्रांसमिशन में तफसील से जायजा लिया गया। IMF मुआहदा बिगड़ी बना गया, मईशत को पटरी पर ले आया, मौसू बना बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन का। तज्जियाकारों, माशी माहिरीन ने राय दी। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा, मुआहदे से माशी गैर यकीनी का खात्मा होगा। IMF एग्रीमेंट हो गया है, पैक कदर में संभाला आएगा और उसकी वजह से जो उनका वो बेहतरी आएगी, स्टेबलाइज होगा रुपी, तो उसकी वजह से जो आपकी जो इन्फ्लेशन है वो कम होनी शुरू हो। टैक्स एक्सपर्ट ईशान मर्चेंट ने इम्पोर्ट से पाबंदी का खात्मा खुशाइन करार दिया। कहा, महंगाई में कमी के भी इम्कानात हैं। हदफ और टारगेट है जो 9,415 अरब का जो है वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और ये एक आसान टास्क नहीं होगा। यकीनन कुछ टैक्स के रेट्स को इस साल बढ़ाया गया है, जैसे कि सेल्स टैक्स हम पिछले साल ही 17 से 18% कर दिया था। अब इसी तरीके से जो अनरजिस्टर्ड बायर होता है वो जो फर्दर टैक्स पे करता है वो अब 3 से 4% कर दिया गया है। मिफ्ता इस्माइल ने IMF मुआहदा नागुज़ीर करार दिया। कहा, माशी इस्लाहात से मामलात और बेहतर होंगे। ये IMF का मुआहदा तो इंतहाई जरूरी था, इसके बगैर तो खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है कि IMF का मुआहदा जरूरी था। और आपने देखा कि जैसे ही मुआहदा हुआ तो उससे बेहतरी आई है, स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई है, इन्फ्लेशन का भी नंबर कम हो रहा है, रुपया भी बेहतर हुआ है। माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल की राय में हुकूमत ने तवक्कात से बढ़कर काम किया। कहा, सियासी इस्तेहकाम से सूरत-ए-हाल और बेहतर होगी। देखें, अव्वल तो ये कि जितना परसेप्शन इकोनॉमी का बुरा था, शायद इकोनॉमी की हालत उतनी बुरी नहीं थी। अच्छा। इस वजह से जो चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो वो शायद लोगों को ताजुब खेज लग रही हैं। माशी माहिरीन हों या सियासी रहनुमा, सब आने वाले रोशन दिनों के लिए पुरुम्मीद दिखाई दिए। उम्मीद जाहिर की कि अवाम के हक में आसानियां पैदा होंगी। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असम्बलियां तहलील करने की तजवीज़ दी है। वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने बड़ी खबर दे पार्लियामेंट हाउस में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, असम्बलियां तहलील करने का फैसला वफाकी हुकूमत को करना है। पीपल्स पार्टी का इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहती है। वफाकी वजीर दो टोक अल्फाज में कहने लगे कि निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। मौजूदा सेटअप में मजीद तोसी की हिमायत नहीं करते। मौजूदा असम्बली में तोसी पर कानून साजी पर उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि आम इंतखाबात वक्त पर होंगे, असम्बली की मुद्दत में इजाफा नहीं किया जा रहा। इलेक्शन कवानीन में कोई तब्दीली नहीं होंगी। कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ सियासी जमातों इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं। नहीं होगा, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और जो तहलील है वो इल्म गैब किसी के पास नहीं होता, वो हालात के मुताबिक होता। इलेक्शन एक्ट में बहुत सारी छोटी छोटी नॉर्मलीज हैं। एक ही हमारा मकसद है कि फेयर, फ्री, इम्पार्शियल इलेक्शंस जो हैं वो हों और फेयर इलेक्शन होते हुए नजर आए। ये सारी पार्टीज का कंसेंसस है। इलेक्शन कमीशन की इनपुट ली है हमने, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड लॉ एंड जस्टिस की इनपुट ली है। ये उस रिपोर्ट को हम फाइनलाइज कर रहे हैं। उसमें हमने फैफन को सुना हुआ है, उसमें हमने पिलडेट को सुना हुआ है, जो गैर वो ऐसी जमातें जो मुंतखब नहीं हो सकी उनको सुना हुआ है। ये उसी को फाइन ट्यून कर रहे हैं, कुछ नया करने नहीं जा रहे। इलेक्शन 2 माह में हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी जमात होगी। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दावा कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी की दरगाह पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला अगले इंतखाबात न सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। पर अगर सबसे बड़ी पार्टी होगी तो प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? तो इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। पाकिस्तान में मरदमशुमारी कंटिन्यू की गई और सिंध के अंदर खत्म कर दी गई सिवाय कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के। मैं जो अनऑफिशियल नंबर्स मेरे पास आए थे उस पर मैं रेस कर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और फेडरल मिनिस्टर साहब के साथ, उन्होंने एक जवाब भी दिया है। मैं उससे कन्विंस नहीं हूँ। सूबा सिंध सबसे ज्यादा गैस 70% गैस इस मुल्क की प्रोड्यूस करता है। कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उस सूबे के लोगों का हक फैला है गैस। इनको जरूरत है। ताज़ा बाइकआउट किया है। अब लोगों के लिए कोई इशू तो है, मुझे पता नहीं है। मैं आपको वो है, अगर कोई गलत काम किया होगा कानून अपने तरीके कार ले। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में PTI के मुनहरिफ गिरोह की हिमायत कर दी। पार्टी ने वज़ीरा के लिए अपना उम्मीदवार नामजद नहीं किया। पार्टी पॉलिसी की मुखालफत पर एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में 13 जुलाई को वज़ीर आला का इंतखाब होगा। कल कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे।
कौन बनेगा वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान? जोड़ तोड़ का गरम है मैदान। पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार न लाने का फैसला कर लिया। पीटीआई से इन्हिराफ करने वाले गिरोह की हिमायत कर दी। अरकान को मुतनब्बह कर दिया कि पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। गिलगित बल्तिस्तान में वजीर आला का इंतखाब 13 जुलाई को होगा। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन गुलबर खान ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना रखा है, जो नंबर पूरे होने का दावा कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद तहरीक इंसाफ के 22 मेंबरान हैं। पीटीआई की इत्तेहादी मजलिस से वहदतुल मुस्लिमीन और इस्लामी तहरीक का एक रुकन है। असेंबली में पीपल्स पार्टी के 3, नून लीग के 3 और जेयूआई का 1 रुकन है। असेंबली में 1 रुकन आजाद हैसियत से भी मुंतखब हुआ था। हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तिलाफात कम ना हो सके। नवाज शरीफ की कोशिशों के बावजूद जेयूआई का गुस्सा बरकरार है। हाफिज हमदुल्ला ने वही पर मुलाकात पर सवाल उठा दिया, कहा कि मौलाना पीडीएम के सरबराह हैं, उन्हें क्यों दूर रखा गया? नून लीग अहम फैसलों में कैसे नज़रअंदाज कर सकती है? राना सनाउल्लाह बोले कि मामूल की मुलाकात थी, कोई फैसला हुआ ही नहीं जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हों और किसी को मनाना पड़े। इत्तेहादी हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर इंतहाई संगीन इल्ज़ाम। शेर रहमान कहती हैं कि इसराइल ने पीटीआई की हिमायत की है। पीटीआई और इसराइल का गठजोड़ सामने आ गया है। शेर रहमान ने कहा कि 9 मई के वाक़यात से किसने फ़ायदा उठाया सबको मालूम है। अता तारड़ ने दावा किया कि इसराइली शहरियों ने पीटीआई को फंड्स दिए। इसराइली हुकूमत 9 मई के वाक़यात पर यूएन चली गई। आए और न्याजी का एक इजराइल की तरफ से हिमायत करना ये अब वाजे कर चुका है कि 9 मई के पीछे कौन था। इजराइल पीटीआई का इत्तेहाद आपके सामने आ गया है। किसने 9 मई से फायदा उठाया ये भी अब आपके सामने है। उससे तो ये जाहिर हो गया है कि ये एक इनका मजमूम इत्तेहाद चल रहा है। पता चल गया कि इमरान खान इजरायली एजेंट क्यों कहलाए जाते हैं। फॉरेन फंडिंग केस में जिन इजरायली शहरियों की तरफ से माली इमदाद तहरीक इंसाफ को दी गई, इजरायली शहरी क्यों तहरीक इंसाफ की फंडिंग करें, आज जवाब मिल गया। वो इजरायली गवर्नमेंट 9 मई के वाकयात के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा चली गई है। हम डे 1 से ये कह रहे थे कि ये मुल्क दुश्मन कार्रवाई है। ये जिन्होंने करवाई है उनके ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। कुरान पाक की बेहुरमती से दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से वर्चुअल खिताब कहा, कुरान पाक की बेहुरमती मुसलमानों के जज्बात और अक़ीदे पर हमला है। Unanimous, all spoke with one voice in condemnation of Islamophobia. Unfortunately, the deliberate desecration of the Holy Quran has continued under government sanction and with a sense of impunity. Increasingly, these acts are designed to maximize provocation. We must see this clearly for what it is: incitement to religious hatred, discrimination, and attempts to provoke violence. We must join hands in condemning it. We must isolate those who stoke hatred. The Holy Quran is a spiritual anchor for 2 billion Muslims. It is inseparable from their sense of identity and dignity. पाकिस्तान को दुनिया भर के बुत ज़ाहिरीन का मरकज़ बनाने की अमली कोशिशों का आगाज़ हो गया। इस्लामाबाद में कंधारा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस कराई गई। दुनिया के कई ममालिक से आने वाले बुद्ध मत के मजहबी पेशवाओं ने पाकिस्तान को बुद्ध मजहब के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद में गंधारा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस में दुनिया के बुद्धा अक्सरियती ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले बुद्ध मत के मजहबी पेशवाओं को बतौर ख़ास मदऊ किया गया। सदर ममलिकत ने अपने खिताब में गंधारा तहजीब की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अपने तारीखी वर्से पर फ़ख्र है। ज़रतुश्ती किताबों में लिखा है कि अहूरा मज़दा ने जो दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह बनाई उसमें गंधारा सिविलाइजेशन का भी जिक्र है। लोग जो मुहक्किक हैं पाकिस्तान की जो सिविलाइजेशंस के ऊपर तहरीरें हैं, ख़ास तौर पर मोहनजोदारो में भी आप देखेंगे। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ जनूबी कोरिया, मलेशिया, चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम से ताल्लुक़ रखने वाले बुद्ध मजहब की शख्सियात ने शिरकत की। उन्होंने सकाफती सिफारतकारी में गंधारा कॉन्फ्रेंस को संगे मील करार दिया।
बुद्धिस्ट शुरका का कहना था कि पाकिस्तान इनके मजहब के लिए अहम सरजमीन की हैसियत रखता है। बुद्ध मजहब की तालीमात में पहला जिक्र टैक्सला का मिलता है। वजीर आजम टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार ने भी गंदारा कॉन्फ्रेंस को गेम चेंजर करार दिया और कहा कि इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उजागर होगा। और अभी आपको बताते हैं कि इंसानी हुकूक की मकामी तंजीम के वफ्द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया है। वफ्द के शुरा ने 9 मई के सानहे पर गम और गुस्से का इजहार किया। सिविल सोसाइटी की जानिब से जिन्ना हाउस के दौरे जारी। इंसानी हुकूक की निजी तंजीम के वफ्द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। शुरा का कहना था कि 9 मई के सानहे पर शदीद दुख और अफसोस है। ये घर बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब है। यहाँ पर हमने जो विजिट किया है उसको देखा है, हमारे दिल जो है वो खून के आंसू रोए हैं। ये बहुत शर्म का मुकाम है और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम इसकी किन अल्फाज में मजम्मत करें। और हमें चाहिए कि हम अपनी आने वाली नस्ल को इस तरीके से तैयार करें कि हम आइंदा आने वाले वक्त में इस तरह के अलमनाक वाक़यात से बच सकें। ये तकलीफ दे लम्हात हैं। शुरा ने कहा कि ऐसी साजिशों से अफवाज पाकिस्तान को कमजोर नहीं किया जा सकता। पाक फौज के साथ हैं। इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए स्टेट बोल न्यूज। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।